motion. And let us first have introduction part, introduction to this chapter, motion. As you all know that whenever I start a new chapter, I always give some topics which have to be covered in this chapter, and that makes us realize that we have finished this topic and the next topic is this, and then every day we can just calculate the number of topics and accordingly we can finish the chapter. Okay, so the first topic which we are going to cover in this chapter is going to be distance and displacement. Then the next topic to be covered in this chapter is uniform and non-uniform speed. Motion. Uniform and non-uniform motion. The third topic will be covered as speed. What is speed? This is what is going to be your third topic. And in the fourth topic, I am going to take velocity, and many of you are actually getting confused between speed and velocity, so that will be covered in these two topics. The difference between the speed and the velocity will be explained here. And then we have the next and the very important chapter in terms of graph, that is accelerated and decelerated motion. This is very important in terms of graph. We are going to study graph also in this chapter. Few graphs will be studying so in this portion. And then this is one of the most important portion to be covered, and that is equation of motion. Equation of motion. So the most important topic to be covered in this chapter will be equation of motion. And why am I saying that this is the most important topic? Even though all other topics are important, but they are important in terms of definitions. Okay, whenever they are going to ask you definitions or basic formulas, okay fine, all these topics are good, but the most important topic which is must for the exam, which will come for the exam every time in the paper, you will see the questions from the topic equation of मोशन. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद दो टॉपिक और बच जाएंगे. द टू टॉपिक्स विल बी लेफ्ट, एंड दैट इज ग्राफिकल representation of motion. Just write graphical representation. And the last part is uniform circular motion. This is also one of the important topics, uniform circular motion. जी, तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया है ना. So how many topics are there? Basically we have 8 topics in this chapter to be covered. So before I start with the first topic, I will be giving some introduction and some basic terms to understand for this chapter. Okay, and that is very important. So I will just give some introductive. One second. Some terms in terms of introduction. So the first term I want all of you to know is rest. हाँ, ये तो सबको मालूम होगा. हाँ, रेस्ट का बेसिकली जो मेन डेफिनेशन होती है वो मुझे चाहिए है. रेस्ट तो सबको मालूम है. मैं हाँ, द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट एट ऑल मूविंग, देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन with reference to a point. Okay, so basically rest की definition क्या होती है? A body is said to be in a state of rest when its position does not change. तो बेसिकली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म जो है रेस्ट का, वो रेस्ट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब उसकी पोजीशन डज नॉट चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो यानी वो बॉडी रेस्ट पर है. बट इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट. ओके, नाउ इसके ऑपोजिट में आ जाता है मोशन, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझना.
कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है मोशन की। कौन बताएगा मुझे मोशन की बेसिक डेफिनेशन? हाँ, yeah, when its position will change, but this is very important to write with respect to a reference point. Okay, so इसका just opposite हो जाएगा, a body is said to be in a state of rest की जगह आप लिख दोगे motion when its position does not change, हट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, position changes continuously with reference to a point. So I don't think so I need to write the definition for a motion here, right? But under this motion, let me just tell you, motion can be of many different types, and they depend upon the type of path by which the object is going through. You understand? For an example, if I say one type of motion, that is circulatory motion. So here that object's path is in the form of a circular motion, right here? So circulatory motion इसको आप बोलेंगे, so circulatory motion में क्या होता है, in a circular path. You understand here? उसके बाद the next type of motion which we can understand is linear motion. Linear का क्या मतलब होता है महेश्वर? नहीं, लीनियर का क्या मतलब होता है? जैसे सर्कुलेटरी का यहाँ पर मतलब हुआ इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा है, तो लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का बेसिकली मतलब होता है इन अ स्ट्रेट पाथ, ये आपका लीनियर मोशन कहलाता है। यू अंडरस्टैंड? एंड द थर्ड टाइप ऑफ मोशन विच वी नीड टू नो इज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ये ऑसिलेटरी मोशन आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हो, वाइब्रेशन। यू अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, टू एंड फ्रो पाथ। यू अंडरस्टैंड? ऑसिलेटरी मोशन आपका कैसे हो जाएगा? मान लीजिए एक पेंडुलम है जी, वेरी गुड एग्जांपल, लाइक इफ इट इज अ पेंडुलम, और आप पेंडुलम को एक डायरेक्शन में खींच रहे हो, ओके, इन दिस डायरेक्शन यू आर just pulling the pendulum. So what will happen? The pendulum will first move to this path, then this path and this path, like this, right? And then it will again come to its original position, and then it will move to the other side, this path and this path. This is what is oscillatory motion, to and fro motion. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? To and fro motion क्या बोलते हैं? हाँ, with respect to its origin. ठीक है, तो दो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दो टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया है, टॉपिक नहीं कहेंगे इसे, टर्म से। वन इज रेस्ट, द अदर वन इज मोशन, एंड अंडर मोशन वी स्टडीड सर्कुलेटरी मोशन, लीनियर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। नाउ थर्ड टर्म जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इसी में बहुत ज़्यादा आप लोगों का डाउट एक्चुअली इस चैप्टर में निकलता है, दैट इज स्केलार and vector. Have you ever heard of these two terms? Scalar. So scalar, हाँ, scalar quantity and vector quantity. तो ये दोनों जो आपके टर्म्स हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो मैं सबसे पहले ये ऐसे सेपरेट कर देती हूँ, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली स्केलार और वेक्टर में फ़र्क क्या होता है? स्केलार जो होता है ना, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग इट्स ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी आपका अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है वो नहीं मालूम। सो हियर वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग। सो व्हाट कैन यू राइट डेफिनेशन में? फिजिकल क्वांटिटी, राइट डाउन, फिजिकल quantity having magnitude, magnitude यानी मोशन हो रहा है but no direction. This is very important कि कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता है। जैसे अगर हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी चीज़ का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एग्जांपल अगर आप किसी का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं या किसी की स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्पीड फाइंड आउट अगर आप करते हैं किसी कार की स्पीड, तो आपको डायरेक्शन पता चलता है क्या, किस डायरेक्शन में वो कार गई है? नहीं ना। तो स्पीड है या डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो आपकी स्केलार क्वांटिटी होती है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? हाँ,
जी, इट हैज टू बी क्लियर। अब वेक्टर में इसका ऑपोजिट हो जाता है। वेक्टर क्या होता है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ, एक मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी साथ में आपका बताया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स both magnitude and direction। यहाँ तक अंडरस्टूड है? सारे लेक्चर्स क्लियर हैं आप लोगों के? हाँ जी। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देती हूँ ना बेटा, तो जो फर्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में करने वाले हैं वो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, जो मेन टॉपिक हमारा कवर्ड है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी काउंट होता है। इज दैट क्लियर डियर? और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो वेलोसिटी भी ले सकते हो। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। आई जस्ट गिव यू 1 minute टू राइट दिस वन। कैन आई प्रोसीड विद द मेन टॉपिक फॉर दिस चैप्टर नाउ? जी, ओके तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था बेटा टू बी कवर्ड? बताइए रेहान जी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो प्लीज अब आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बीच में पूछ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल हेसिटेट मत करिएगा कि मैम ने समझा तो दिया, अरे समझ में नहीं आया क्या पूछें, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया बीच में टॉपिक खत्म होने के बाद, जैसे मैंने डिस्टेंस समझाया, डिस्प्लेसमेंट समझाया, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी तो मैं कहूंगी समझ में आ गया, नहीं समझ में आया मैं पूछूंगी, तो उस वक्त नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही हम पढ़ लेते हैं ना। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, कोई भी एक्चुअल पाथ होता है ना, इट्स द एक्चुअल पाथ और द लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पर था, दूसरा सेम ऑब्जेक्ट आपका अब पॉइंट ए डैश पे आ जाता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? ए डैश हो जाएगा, राइट? सॉरी, कहाँ चला गया बोर्ड मेरा? हाँ, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए डैश। So the actual path or length traveled by an object during its journey from its initial position to its final position. So A was its initial position and A dash was its final position, and it is called as distance. So do you want me to write the definition as well? G, starting position, start. ठीक है, the actual path or length traveled by a object during its journey from initial to final position is called distance। जी, ये लिख लीजिए बेटा आप, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। ओके।